Hi everyone, welcome again. So this is I think the 10th session of shortcut series, and today also we'll do 3 questions, very good questions in fact, right? And let's start with the first question. So this was a cat question, cat 13 if I remember correctly. So you can pause the video, you can try this out, right? Multiple concepts are applied here. All right. Okay, so I think you have tried it now. चलिए स्टार्ट करते हैं. Now, so question is ABC is inscribed in a triangle of sides 10, 17 and 21 centimeters such that one of the sides of the square is on the longest side of the triangle. That means 21 centimeter, right? Find the length of each side of the square. Now, first thing to be noticed here is that 10, 17, 21 is not a Pythagorean triplets. I mean, the triangle is not a right triangle. Otherwise, the question would have been very easy, correct? So, this is the triangle. Let's name it. So, let's say it is A, B, and C. And now we need to make a square. Inscribed means it should touch the parameter of the triangle, and one of the side is on BC, right? If let's say this is 10, this is 17, and this is 21. So one of the side should be on 21, so should be look like this, right? Let's say it's PQRS. I need to find the side of the square. So obviously you need to see that in this case APQ triangle and ABC will be similar. Why? Because PQ is parallel to BC, right? So we need to use similarity here, right? But the problem is we do not know about AP or AQ, right? We just know that BC is 21. PQ we can assume as X, right? Side of the square which I need to find, right? But to similarity we need something else also, right? So if I drop a perpendicular from A, let's say it is AD, can we find the length of AD, right? So if you have 3 sides of a triangle, right? 10, 17 and 21. So we can find the area of this triangle ABC, right? Using Hero's formula. We can also find the area using half base into height. So half into 21 into AD. So when we equate it, you will find the value of AD. Right? So once you get the value of AD, you will use similarity and find the value of X. But what is the shortcut here? ये तो normal approach हो गई है ना. Shortcut ये है that you remember in one of the previous videos we talked about Pythagorean triplets, है ना? We talked about 3, 4, 5. Multiple of that also will work, right? 6, 8, 10 and so on and so forth. We talked about 5, 12, 13. We talk about 8, 15, 17, 7, 24, 25, right? These are the most common ones, commonly used Pythagorean triplets, either this or multiple of this, right? Now can we use this, right? Geometry में काफ़ी यूज हो जाता है इसका कई बार. So AD is definitely a perpendicular, right? So we have two right angle triangle ABD and ADC. अब इस पे ध्यान दो, 17 I have as a hypotenuse. So there is highly probable chance कि ये कुछ अप्लाई होना चाहिए, correct? Then in the next one we have 10 as a hypotenuse. So ये जो हमने 4 लिखे हैं इसमें 10 किसका मल्टीपल है? 5 का. I mean इसको अगर मैं 6 से 10 कर दूँ तो शायद ये काम कर जाए, है ना? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू इज 8. और इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू ट्राइंगल इज AD. इट मीन्स हाईली प्रॉबेबल चांस है कि AD अगर मैं 8 रख दूँ तो यूजिंग 6 से 10 ये 6 हो जाएगा, दिस विल बी 6, एंड यूजिंग 8, 15, 17 दिस विल बी 15.
Now to verify this, you can see that 6 plus 15 is 21. That means our assumption is correct. And I'm again saying it was a highly probable chance, right? Very high, 99.99%. Correct. Because see, if CAT is giving you this question, right, he will not try to bother you about the calculation part, right? Because multiple concepts are applied here, है ना. डायरेक्ट कुछ होता तो अलग बात थी, बट ऐसे केसेस में इंटीग्रल वैल्यू ही देगा आपको. नाउ इट्स सिंपल बिकॉज ये x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएगा, तो दिस विल बी 8 minus x. Now you can use similarity. Now using similarity also we can use one approach here, that I mean when two triangles are similar, right, we know that sides are in the same ratio, but and also if you must have read that if two triangles are similar, ratio of sides is also equal to ratio of their altitudes or median or angle bisector. So because we have only one ratio of side, right, that PQ is to BC, that I know, right, X is to 21, but we do not about AP or AQ, so we can use altitudes, length of altitudes instead of length of sides. I mean what I am saying that when you are using similarity, so PQ upon BC, that is X upon 21, should be equal to ratio of their altitudes. So altitude means 8 minus X over 21. Sorry, over 8, right, altitude is 8. Now you can cross multiply and solve it, so it's simply 8x is equal to 168 minus 21x, that gives you x as 168 upon 29, which is your answer. Clear, I hope, right? It was not a theta question, right? Options were there, but I deliberately removed that because I don't remember the options exactly, and that was not the point of the shortcut also. The point of the shortcut was Pythagorean triplets, right? So we have done one question like this earlier in the earlier video. We'll also do one more question based on this, which is again a CAT question. Clear? Alright then, let's move to the second question. Very good question which came in CAT 07. Although it's a conceptual question, right, but Jugaad will follow the ones we talked about earlier also, right? Pause the video, give it a try. So it's a combination of two questions, so we will do both the questions, and we'll do one more question. So basically we will be doing 4 questions today, right? So first you try this and then we will discuss. Alright then, start karte hain. Let S be the set of all pairs I comma j where 1 less than equal to I less than j less than equal to n and n is more than equal to 4. So pairs आपने बनाए हैं I comma j, तो I j है 1 से लेकर n तक चलेगा, राइट. सो लाइक 1 1 1 2 1 3 4 1 है ना, ऐसा कुछ चलना चाहिए. सॉरी 1 1 नहीं चलेगा बिकॉज I लेस देन j बोला हुआ है. सो 1 2 1 3 1 4 ऐसे चलने वाला है कुछ. Any two distinct numbers of S are called friends if they have one constituent of pair in common and enemies otherwise. एग्जाम्पल पे दिया है, अच्छी बात है, अदरवाइज तो हम कन्फ्यूज हो जाते शायद एग्जाम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल टू 4 देन s इज इक्वल टू 1 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, राइट. 6 एलिमेंट्स इसके हो गए. अब कोई भी दो पेयर फ्रेंड्स कब होंगे, जब उसमें से एक पार्ट कॉमन होगा, राइट. अब जैसे 1 2 और 1 3 में 1 कॉमन है इसलिए फ्रेंड्स हैं. 1 2 2 3 भी फ्रेंड्स हैं बिकॉज 2 कॉमन है. बट 1 4 एंड 2 3 आर एनिमीज. तो फ्रेंड्स एंड एनिमीज हमारे क्लियर हो गए क्या होते हैं. क्वेश्चन क्या है, फॉर जनरल एन हाउ मेनी एनिमीज विल ईच मेंबर ऑफ एस हैज़. किसी भी जनरल एन के लिए कितने एनिमीज होंगे फॉर वन पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट, वन मेंबर. जैसे 1 2 के कितने एनिमीज होंगे, राइट. सो एक तो हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम जुगाड़ की बात करते हैं, राइट. जुगाड़ देखो ये है, हमने पहले भी इस तरह क्वेश्चन किए हैं. वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द वैल्यूज ऑफ एन, राइट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एन एंड देन क्रॉस वेरीफाई यूजिंग द ऑप्शंस, करेक्ट. तो ऑप्शन सेटिस्फाई कैसे करेंगे, अगर आपको देखो एन तो 4 दिया हुआ है,
तो हाईली प्रोबेबल चांस है ये तो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आई नीड सच वैल्यू ऑफ एन जिसमें दो ऑप्शन सेम नहीं बने, और ऑप्शन काफ़ी ट्रिकी हैं, राइट, ईजी क्वेश्चन, ईजी ऑप्शन नहीं है. सो ट्राई नॉट टू टेक ऑब्वियसली n इक्वल टू 4, बिकॉज ये उसने अगर दिया हुआ है तो ये तो मान के चलो, तो ये तो शायद काम नहीं करेगा, इसमें 2-3 ऑप्शन सेम बन जाएंगे, राइट. एज यू कैन सी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर सेम, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, तो वो तो मेरे ख्याल से वर्क नहीं करेगा, है ना. तो कुछ बड़ी वैल्यू लेते हैं, 6 ले लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, है ना. 5 भी शायद काम करे नहीं करे पता नहीं है, तो 6 ले लेंगे तो आई थिंक हमारा काम थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. तो सपोज अगर मैंने n को 6 ले लिया, तो वी कैन टेक मल्टीपल एलिमेंट्स, राइट. तो अब कोई भी एक मेंबर इसका ले लेते हैं, लेट्स से 1,2. सो 1,2 के कितने फ्रेंड्स होंगे, राइट, सॉरी कितने एनिमीज होंगे. सो एनिमी वही होगा जिसमें ना तो 1 आए ना 2 आए, राइट. सो वी आर लेफ्ट विथ 3, 4, 5, 6. एनी पेयर विच यू कैन मेक यूजिंग दिस विल बी एनिमी ऑफ दिस, करेक्ट. इससे जो भी पेयर बनेगा वो इसका एनिमी होगा. तो इन चारों से हम कितने पेयर बना सकते हैं, 3, 4 बना सकते हैं. वी कैन मेक 3, 4, वी कैन मेक 3, 5, वी कैन मेक 3, 6, and we can make 4, 5, 4, 6 and 5, 6. That's it. पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज. सो इसका मतलब 6 आंसर आना चाहिए, राइट. सो फॉर n इक्वल टू 6 माई आंसर शुड बी 6. नाउ चेक द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन आपको देगा 3, रूल्ड आउट. सेकेंड देगा आपको 6 स्क्वायर 36 माइनस 18 माइनस 2 इज़ 16 अपॉन 2 इज़ 8, आना चाहिए 6, ये भी आउट है. 2 इंटू 6 12 माइनस 7 इज़ 5, नहीं चाहिए. 6 स्क्वायर 36 माइनस 36, 6 प्लस 6 इज़ 12, 12 अपॉन 2 इज़ 6, ये 6 दे रहा है आपको. एंड लास्ट वन 6 स्क्वायर 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 14 इज़ 8, 8 अपॉन 2 इज़ 4, अगेन आउट. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट केवल एक ही ऑप्शन आपको सेटिस्फाई किया, तो दैट्स माई आंसर. क्लियर है. n इक्वल टू 6 पे हमारा बात बन गया. लॉजिक भी पढ़ लेते हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है. लॉजिक देखो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है. तो क्वेश्चन दिखने में लगता है इट लुक्स लाइक अ सेट थ्योरी क्वेश्चन, है ना, कुछ बना के दिया हुआ है, बट एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन. ठीक है. अब सोचो जैसे 1,2 हमने एक एलिमेंट लिया, सो इन दोनों को छोड़ के इफ़ आई लेफ्ट दीज टू आउट वी आर लेफ्ट विद 4 एलिमेंट्स, और 4 एलिमेंट्स से जो भी आप पेयर बनाओगे, है ना, वट एवर पेयर यू मेक यूजिंग दीज 4 एलिमेंट्स दैट विल बी एनिमी ऑफ दिस, वो इसका एनिमी होगा. और इन 4 से हम कितने एलिमेंट बना सकते हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम, 4c2, तभी तो आपका 6 आया ना आंसर. देखो, सो इफ आई एम टेकिंग फॉर जनरल n, सो लेट्स से 1,2 आई पुट असाइड, उसको मैंने साइड में कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विद n-2 एलिमेंट्स. उसको लेकर आप कोई भी 2 पेयर बनाओगे दैट विल बी एनिमी ऑफ 1,2. तो अगेन यूजिंग सेम लॉजिक, n-2 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है, तो n-2c2 दैट विल बी योर आंसर. n-2 इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स योर आंसर. देखो अगर क्लिक हो गया लॉजिक तो नो डाउट यही अप्रोच बेटर है ना, बट उतना इजी नहीं है क्लिक होना, है ना. इट डज नॉट लुक लाइक ए PNC क्वेश्चन. तो अगर नहीं क्लिक हुआ तो ऑब्वियसली n की वैल्यू पुट तो कर ही सकते हो, सेटिस्फाई कर ही जाएगा. ठीक है. चलिए देखो, पॉइंट शॉर्टकट का वही होता है, अगर लॉजिक क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो जल्दी से सॉल्व हो रहा है तो वैसे ही अप्लाई करना है आपको. नहीं क्लिक होना है, यू हैव टाइम टू सॉल्व, राइट, तो ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं. और वैसे भी ये क्वेश्चन पेयर में आया था, सो वंस यू फॉलो दिस तो 2 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं आपके, है ना, तो डेफिनेटली करना बनता था ये. इसका सेकंड पार्ट था ये, फॉर जनरल n कंसिडर एनी 2 मेंबर्स दैट आर फ्रेंड्स. कोई भी 2 फ्रेंड मेंबर ले लो जो फ्रेंड्स हैं. हाउ मेनी अदर मेंबर ऑफ s विल बी कॉमन फ्रेंड्स टू दीज 2 मेंबर्स. सेम लॉजिक लगाते हैं. n इक्वल टू अगर मैं 6 लेता, अब मैं 2 फ्रेंड्स लेता हूँ उसके अंदर, सो 1,2 एंड 1,3 फ्रेंड्स है.
इसके और कितने फ्रेंड्स होंगे? जहाँ भी 1 आएगा वो तो उसका फ्रेंड होगा ही होगा. सो 1,4 दोनों के कॉमन फ्रेंड चाहिए ना आपको, तो 1,5 1,6 दीज विल बी फ्रेंड्स, है ना. और 2,3 भी फ्रेंड्स होगा बिकॉज वो भी सेटिस्फाई करेगा इसको. करेक्ट. सो यानी कि आंसर शुड बी 4. सो फॉर n इक्वल टू 6 मेरा आंसर 4 आना चाहिए, है ना. पुट द वैल्यूज. 36 माइनस 36 6 प्लस 8 14 अपॉन 2 7 नॉट रूल्ड आउट. 2 इंटू 6 12 माइनस 6 इज 6 नहीं चाहिए, 4 आना चाहिए था. हाफ इंटू n माइनस 3 6 इंटू 3 18 अपॉन 2 इज 9 नहीं चाहिए. 4 माइनस 2 इज 2 सॉरी 6 माइनस 2 इज 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है. लास्ट वन 36 माइनस 42 माइनस 6 प्लस 16 10 अपॉन 2 5 आ रहा है, नॉट रूल्ड आउट. अगेन एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई किया, दैट्स माई आंसर. ठीक है. लॉजिक की बात कर लेते हैं. लॉजिक ये है कि आपने 2 एलिमेंट्स तो ले लिए, तो बेसिकली आपने 3 एलिमेंट साइड में कर दिए, है ना. तो 1 के साथ आई कैन टेक एनी एलिमेंट विच इज़ अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एलिमेंट्स. इनको 3 को छोड़ के आप 1 के साथ बाकी सब ले सकते हो. सो अगर मैंने n में से 3 हटा दिए, सो आई एम लेफ्ट विथ n माइनस 3. n माइनस 3 पेयर तो बन जाएंगे आपके साथ 1 के साथ, है ना. 1 के साथ सेकंड जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी फिल्ड इन n माइनस 3 वेज. और एक बनेगा वो जिसमें ये दोनों आते होंगे बचे हुए पार्ट 2,3 जैसे ये बना. सो प्लस 1 गिव्स यू नथिंग बट n माइनस 2. अगेन बट अगर ये क्लियर हुआ तो डेफिनेटली यही वाला लॉजिक ईजी होगा. नहीं क्लियर हुआ तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ 6 n इक्वल टू 6, राइट. ठीक है. ऑल राइट, मूविंग ऑन. देखो n की वैल्यू सेटिस्फाई करती है कई जगह पे, आपने पहले भी बात किया होगा ना. ये भी एक क्वेश्चन बढ़िया था. इसमें भी हम पाइथागोरन टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे और एक और अप्रोच लगाएंगे. अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी एज डायमीटर फ्रॉम C a point on AB a perpendicular to AB is drawn meeting the circumference at D given that AC बराबर 2 सेंटीमीटर CD बराबर 6. सो AB को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल बनाया गया है जिस पे एक पॉइंट है C and perpendicular is drawn which is meeting the circle semi circle at D. C AC 2 है and CD 6 है. we need to find the area, that means रेडियस निकालने की तो बात बन जाएगी, है ना. अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये 90 डिग्री है आपका ना, सो इफ़ आई जॉइन OD तो दिस विल बी R रेडियस, और OA भी R है, उसमें से ये 2 है आपका, तो दिस आई एम लेफ्ट विद R माइनस 2. क्वेश्चन तो देखो इजी है, पाइथागोरन थ्योरम लगाऊंगा तो आंसर आ ही जाएगा. बट अगेन लुक एट द पाइथागोरन टेम्पलेट्स. ऐसा कौन सा पाइथागोरन टेम्पलेट है जिसमें 6 आता है? 3 4 5 उसका डबल है 6 8 10. मतलब अगर ये R है तो ये R माइनस 2 होना चाहिए, विच इज़ यस इट इज़ देयर. R माइनस 2 है ये, है ना. 6 R माइनस 2 R. सो बिना थ्योरम लगाए हम मतलब ट्रिपलेट से पता लगा पा सकते हैं कि R शुड बी 10 ओनली. उसके बाद तो सिंपल है, आपको हाफ पाई R स्क्वायर करना है, 10 स्क्वायर 50 पाई आंसर आ जाएगा, है ना. सो अगेन देखो पाइथागोरन टेम्पलेट हमारा काम कर गया. सेकंड अप्रोच, इफ़ यू रिमेंबर दैट इन अ सर्किल इफ 2 chords intersect internally ABCD at P, so PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है, राइट. बहुत कॉमन थ्योरम है, काफ़ी जगह काम में आती है ना. इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसको ही अप्लाई कर सकते थे हम. हाउ? ये आपका सेमी सर्किल था, है ना. 6 2. इफ़ आई कंप्लीट द सर्किल, अगर मैं ये सर्किल पूरा कर दूँ और इसको एक्सटेंड कर दूँ, तो बिकॉज ये 90 है जो बाइसेक्ट करेगा इसको कॉर्ड को, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये भी 6 होना चाहिए. इफ़ आई एज्यूम दिस एज x, so use this property 2 into x is equal to 6 into 6. That gives you x as 18. 18 plus 2 is 20. 20 डायमीटर आया तो रेडियस 10 हो गई. ठीक है.
चलिए, तो इफेक्टिवली वी हैव डन 4 क्वेश्चंस टुडे. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन. बाय बाय.